हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले वायरस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, मॉर्फोलॉजी देखेंगे गाइस। और इसका क्लासिफिकेशन है वो अगली वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी वैसे तो। अब चलो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। वायरस इज ए लैटिन वर्ड मीनिंग poison or venom. It was generally believed that the virus or poisonal were carried in the night air and caused many unexplained disease. वायरस ऐसी डिजीज होती है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसका मीनिंग होता है पॉइजन यानी जहर। द लेट 18,000 लुइस पोस्टर, रॉबर्ट कोच एंड अदर बाइनर बैक्टीरियोलॉजिस्ट demonstrated that may disease in man, other organisms were caused by bacteria. Some disease puzzle में हुई थी 1800 में लुइस पोस्टर, रॉबर्ट कोच और अदर बाइनरी बैक्टीरियोलॉजिस्ट ने की थी। फिर some disease puzzle them because the cold find no bacteria or other organism that were responsible for the disease symptom. In 19,000 Walter Reed His co-workers discovered the virus of yellow fever. इसे दिया था 1800 में था। इसकी खोज हुई थी वेटर रीड ने की थी येलो फीवर में। द फर्स्ट वायरस डिजीज ऑफ मैन। आफ्टर दैट ए लार्ज नंबर ऑफ ह्यूमन वायरस हैव बीन नोन एज नोलेटेड। वायरस दैट अटैक बैक्टीरिया वेयर फर्स्ट डिजीज डिस्कवर्ड इन 1950 by British scientist Torat. Later in 1970, French investigation in heavily standard these bacteria virus named them as bacteriological or phages. Definition. Virus may be defined as extremely small albeit intracellular living form containing only one type of nucleic acid, either DNA or RNA. Earlier, they were called microscopic virus because they could not be seen light microscope. मतलब इसको नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता, लाइट माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता है। Because they could not be seen in light microscope, they were also called filterable virus since they pass through filters which hold the bacteria back. Now they are simply called viruses. A mature virus bacterial is called virus. Characteristics देख लो इसकी। Virus have both living characteristics. Living characteristics. They reproduce only in living cells. They have the capacity for growth in size number X number. They under mutation of their genes, and they also have the ability to undergo change in heredity characteristics. They can adapt themselves to their environment through natural selection. Non-living characteristics. Viruses do not have a cellular organism. They do not have problem a cell do. They do not carry and responsible as cellular life. No, they take a road. They do not respond to external stimuli. They do not multiply by binary fission or not capable for independent existence growth. Outside the cell, they behave like chemical molecules. Morphology. Size. All viruses are extremely small, cannot be seen. A compound microscopic. The following three basic techniques are used to determine the size of virus. वायरस की साइज चेक करने के लिए 3 टेक्निक यूज करते हैं। पहले फिल्ट्रेशन थ्रो ग्रेड मेम्ब्रेन, हाई स्पीड कॉन्सेंट्रिफिकेशन, फिर डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन अंडर इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोपिक। ये 3 स्टेप है जिनसे उसकी वायरस की साइज देखी जा सकती है। अब वायरस आर मेजर्ड इन मिलीमाइक्रोन ml. 1 millimicron is 1,000th of mmicron.
वेरी कॉन्शियसली इन साइज, वेरी स्मॉली इन साइज, मतलब इनकी साइज बहुत ही स्मॉल होती है। द साइज रेंज फ्रॉम 15 माइक्रोन टू 450 माइक्रोन। द स्मॉलेस्ट वायरस इज ऑफ ए फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल 1.5 माइक्रोन डेल। द लार्जेस्ट वायरस इज ऑफ पोमेंट फीवर। सबसे छोटा वायरस इसमें होता है फुट में और माउथ में, और सबसे बड़ा होता है इज पोमेंट फीवर, पोमोट फीवर में होता है। The smallest virus is of yellow fever 20 micron and the largest virus is pox virus 4000 micron. अब safe virus like other microorganisms very safe. These may be spherical, rod shaped, covoidal, rhomboidal, multi-sided, needle shaped, etc. Roberts virus is bull shaped, tobacco mojica virus TB. In rod shaped, poliovirus is spherical, pox virus is rectangular and brick shaped. Some virus are irregular in shape. इनकी shape irregular होती है, मतलब कैसी भी हो सकती है। ये जो फिक्स है ये तो मैंने बताई थी, और इनके अलावा जो वायरस होती है उनकी इनरेगुलर होती है। स्ट्रक्चर देख लो, वायरस है आर्टिलेशन सिंपल स्ट्रक्चर एज कंपेयर्ड टू अदर लिविंग थाई। वायरस प्रैक्टिकल इज कॉल्ड where which consists of two parts VIG, the content core or nucleic acid core protein core, the central core or nucleic acid core. It may be either ribonucleic acid RNA or deoxyribonucleic acid DNA. Plant virus contain RNA while animals virus have DNA or RNA. The two together are found in a virus. The protein coat, even the central core is called the capsid. Itself is formal of a number of it is known as capsomere. Some viruses are surrounded by one or enveloped with lipoprotein in natural as seen in herpes virus, pox virus, rabies virus, etc. Non-protein subunits projection or its surface which are called capsomere. A virus may have more than one type of mere, as a influenza virus which contain two types of papillomavirus. If there is no envelope surrounding the virus, it is called as naked virus. ये देख लो, कैप्सिड होती है जो सबसे अंदर होता है आरएनए, मतलब न्यूक्लिक एसिड जो भी होता है, आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। फिर उसके ऊपर होती है कवरिंग कैप्सिड की, और उसके ऊपर कवरिंग होती है कैप्सोमेयर की। ये कौन सा आ गया? वायरस कल्चर एनवलप वायरस। फिर है वायरस एनवलप, इसमें देखो सबसे अंदर है डीएनए, डीएनए वाले में दो कवरिंग होती है ना, डीएनए, फिर है कैप्सिड, फिर उसके ऊपर है कैप्सोमियर, और कैप्सोमियर के ऊपर एक और कवरिंग होती है एनवलप, और एनवलप के ऊपर लगे होते हैं पेप्लोमियर। तो ये स्ट्रक्चर है दोनों डीएनए और आरएनए वायरस की, मतलब अलग डीएनए की वायरस की अलग होती है। अभी जो कोरोना चल रहा है वो आरएनए वायरस है। अभी मैं आगे एक और वीडियो आएगी, उसमें सभी वायरसेस के बारे में बताऊँगा, क्लासिफिकेशन, वो वीडियो जरूर देख लेना। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्लासिफिकेशन वायरस वेयर फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वायरस होस्ट रिलेशनशिप लाइक प्लांट वायरस, एनिमल्स वायरस होस्ट cell relationship like neutropic, determinopic virus, tropic, phenotropic centric virus. In early 1950, virus were classified into two main divided depending on the type of nucleic acid, DNA or RNA they possess. Disease producing DNA, disease producing RNA virus. क्लासिफिकेशन है डिजीज प्रोड्यूसिंग डीएनए वायरस, मतलब जो डिजीज डीएनए वायरस से होती है उनका नाम देख लो। इनका क्लासिफिकेशन मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। वेरियोला एंड वैक्सीन वायरस, वेरियोला वायरस स्मॉल पॉक्स का कारण है वेरियोला वायरस, फिर वेरियोला मेजोर, फिर वेरियोला माइनर, वेरियोला वायरस, पॉक्स वायरस, ये इसके टाइप है वेरियोला वायरस के। अभी सेकेंड है हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस HSV, फिर वेरियोला जोस्टर वायरस VZV,
चिकन पॉक्स का कारण होता है ये वेरियोला जोस्टर वायरस। फिर है एडिनो वायरस, ये सारे डीएनए वायरस है ना। एडिनो वायरस, ह्यूमन पेर्वो वायरस, इम्बोआ प्ल्यूमा पेपिलोमा वायरस, साइटोमाइलो वायरस, सीएमवी, इप्स्टीन बेरिया वायरस, ईबी, हेपेटाइटिस बी वायरस, एचबीवी। फिर डिजीज प्रोड्यूसिंग आरएनए वायरस, अब आरएनए वायरस आ गई, इनको देख लो। पोलोमास्टेड वायरस, सेकंड है राइनो वायरस, थर्ड है ऑर्थोमाइक्सो वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। फिर है फोर्थ पैरामाइक्सो वायरस, पैरामाइक्सो। फिर इसके टाइप है मम्स वायरस, रेबुला, इन्फ्लुएंजा। इसका सेकंड टाइप है मिमिलस वायरस, रेबुला और मोरबिलिस। फिर थर्ड है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। अब इसका फिफ्थ टाइप है रेबिडो वायरस, रेबिस वायरस, ये उसमें होता है डॉग बिलेटिन में। फिर 6 नंबर का है जर्मन मिजिज वायरस, रेबिला वायरस। फिर अर्बो वायरस, एथ्रोआउट बोर्न वायरस, अर्बो वायरस। मॉस्किटो ब्रोन एरोबिक वायरस, चिकनगुनिया वायरस, जेबी वायरस, जेपेनेस वेनेडेट्स वायरस, येलो फीवर वायरस, डेंगू फीवर वायरस, टिक बोर्न रोबियोसिस, KFD वायरस, क्वासिबल फॉरेस्ट डिजीज वायरस। 8 नंबर का है कोरोना वायरस। देखो आ गया ना कोरोना भी। गाइस ये अभी जो चल रहा है वो तो अलग टाइप का है, इससे पहले इसके मतलब अलग टाइप आ चुके, तो उनके बारे में बता दूंगा आपको। रोटा वायरस, रिट्रो वायरस, ये इम्पोर्टेंट वायरस है तीनों। रोटा, रिट्रा वायरस, ऑर्गेनिक इन ट्यूमर प्रोड्यूसिंग आरएनए वायरस, HILV ह्यूमन टी सेल्स ल्यूकेमिया वायरस, HTIV। फिर है HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।